घर से बस अड्डे आने तक आपने कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, फिर एयरपोर्ट पहुंचने या स्टेशन पहुंचने से MI आने तक प्रेजेंटेशन सबको एक एक पेपर। Everyone, please take one sheet. You take some and distribute that. Take in a hand. Let them take it. You just show. Praveen, take some sheet and distribute that. एक एक ले लीजिए। Has everyone got a sheet? You open and see there is a number. Still there are people who have not taken. How many are there? 4. How many people have not taken? 1. By 9:57. Why? Who is the person telling? Yes. He has to be sent back to him. Every day is 9:50 is not his time. Has everyone got paper? Okay. Can you all please get up from your place? Take all your things. Take all your things with you. All the ones, please come to this place. All number 1, please come here. Number 2 in the middle. 1 in this side. Number 2 in the middle. Number 3 that side. Here. Number 3 will be here. Number 2 in the middle. Number 1 there. Take all your things and quickly move. And number 1. Number 1 is that side. Here, here. When you are sitting, no two same state people should sit next to each other. Number 2, sit in the middle. Take the center. System नहीं है। Number 3, please take. Yeah. Number 3 है ना? 45 only. Yes, ma'am. Sir, just 1 minute wait. Number 1, can you please quickly raise your hand? 2 people, please come here. Last 2 people. Sir, please sit here. Sir. Please come here. Sir, you sit there. Sir, number 1 again, can I ask number 2, Hera ma'am? Sir, you shift the place. This. Number 2. You are in number 2 or 3, sir? 2. Last. 3. 3, no? You are in which group, sir? Second, somebody is sitting extra. Sir, आप 1 में shift कर दीजिए. वो last में जाना, please. So today we have grouped you into group number 1, 2, 3. For the whole day you will stay with this group. In the whole afternoon we will be going for visit. You will be like the 15 members in the same group will go together everywhere. Okay. So this is the group for your whole day.
for all the sessions. Okay. So very good morning once again for joining for this. Can I request everyone to close your TADA now? You have to use your lunch time and break time. Today you have to submit your TADA. Until you submit your TADA by lunch, before lunch close, you have to submit it today. So today, please everyone, after your lunch, come here quickly because we will start the session 1:30. Will start. So 1:30 ka before you give, then only we can cross. So today, after resolving your thing, only you will be left to go back in the evening. If anything is not okay, we will check and get it corrected today. So then only we can go. Okay. So today we are in the third day. हमारा ये पूरा दिन we are going to really look into about production. How we really convert our idea into screen. ठीक है, so हम शुरू करते हैं पहले एक सेशन से like how do you really what is the process of developing audio video programs. So हम क्यों ये सेशन जरूरी है डायरेक्ट फैकल्टी का, ये ई कंटेंट डेवलपमेंट वर्कशॉप नहीं है, बट क्यों ये सेशन रखा है, बिकॉज ऑल डायरेक्ट फैकल्टी एंड SCRT faculty, RIE faculty are involved in one or the other way in development of content for PM eVidya TV channel now. You are aware how many channels your state has? Five. So some every state has different number of channels, right? So इतना channel है, इनको content देना है. It's like a elephant. कितना भी दे दो उतना consume करते हैं. So 24/7 to prepare content is not a easy task. So हम सबका डाइट फैकल्टी का ऊपर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका टीवी चैनल के लिए कंटेंट कंट्रीब्यूट करने के लिए. So usually in our content development workshops we just make them to just write one script, go to the studio and record. आपका वो एक्सपीरियंस नहीं देते हैं अभी, बट आपका एक्सपीरियंस है. आज हम शुरू कर देंगे अंडरस्टैंड थियोरेटिकली हाउ वी हैव टू गो द प्रोसेस, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ज़्यादा स्टेट में कंटेंट डेवलप किया, देन बाद में सोर्स फाइल नहीं है, कुछ करेक्शन करना है, करेक्शन करने के लिए फाइल नहीं है, तो दोबारा शुरू से रिकॉर्डिंग करते, वो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है. हम एक्चुअली कुछ स्टोरी बोर्ड लिखा है, स्क्रिप्ट लिखा है, बट वो स्क्रिप्ट किधर भी सेव्ड नहीं है. सो हमको समझ आना है प्रोसेस क्या है, हम किधर किधर हम ध्यान रखना चाहिए, ये पूरा हम ध्यान रखना चाहिए. सो वी आर स्टार्टिंग विद दैट सेशन. द सेकेंड इज मोस्ट ऑफ द टाइम एज एकेडमिक पीपल वी आर ओनली टोल्ड अबाउट स्क्रिप्ट राइटिंग. सो आज एक सेशन भी हम रखा है, आप स्क्रिप्ट टू स्क्रीन प्रोडक्शन का क्या क्या होता है, राइट? प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू में, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में आपका स्क्रिप्ट लिखने के बाद क्या होता है, क्या प्रोसेस है, कैसा वो टीवी में अल्टीमेटली आते हैं, कैसा वो बाहर में आते हैं, वो प्रोसेस भी हम समझना चाहिए. एंड आफ्टरनून आपका कुछ ज्यादा विजिट्स है, ठीक है? एक्चुअली अलग अलग स्टूडियो का अलग अलग स्ट्रक्चर है, बिकॉज सब स्टेट में स्टूडियो जरूरी है. अभी थोड़ा लॉन्ग रन में आपका स्ट्रेंथनिंग डाइट में ये भी प्रपोजल था दैट्स ऑल डाइट शुड हैव एटलीस्ट अ स्मॉल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो. सो आपका वो कल में भी यू विल बिकम द कोऑर्डिनेटर टू डू दैट, राइट? बट आपका पता होना चाहिए मेरा स्टूडियो एस्टेब्लिश करना है, क्या क्या होता है, क्या लेना है, क्या देना है उधर से, क्या इक्विपमेंट्स होना है, वो पूरा आपका समझना चाहिए. सो वी विल गो टू विजिट मल्टीपल स्टूडियो. हमारा एक बड़ा स्टूडियो है, एक छोटा स्टूडियो है. so, वी आर गिविंग बड़ा टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या स्ट्रक्चर इंडिया में है. सेकेंड, आपका छोटा स्टूडियो भी एक्सपोजर कर दो सो दैट आपका समझ आते हैं हम छोटा स्टूडियो बनना है क्या क्या से चल सकते, मिनिमम से भी चल सकते. हाउ वी हैव कन्वर्टेड नॉर्मल रूम्स टू स्टूडियो, बिकॉज एनसीईआरटी में नया बुक आने की वजह ज्यादा डिमांड ज्यादा हो गया. सो अभी स्टूडियो सफिशिएंट नहीं है. सो कैसा हमारा नॉर्मल स्टूडियो कैसा सडनली हम नॉर्मल रूम में
कैसा स्टूडियो बना दिया वो भी चल रहा है, एंड कैसा ISL रिकॉर्डिंग करें ये पूरा हम विजिट कर देंगे, ठीक है। हमारा अभी फर्स्ट सेशन शुरू कर देंगे, डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। हमारा साथ ऑलरेडी हम इंट्रोड्यूस है प्रोफेसर इंदु कुमार जी का, शी इज heading the Department of ICT and Training Division. She is also the National Coordinator for Diksha, and she is under this particular department. हमारा ज़्यादा trainings, development works, online courses सब हम ये department देखते हैं CIT में. So I welcome on behalf of everyone Indu ma'am and hand over the session to her. So this session is about, because you are also learning development of audio and video resources. Audio you might have already get an exposure to. Audio का session हो गया. अभी audio का एक अलग session शायद. Audio के लिए अलग No से ma'am, होता है. process is only for both together. So this is about development of video resources. कोई भी हम एजुकेशनल वीडियो अगर बनाते हैं या एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, वो जेनरिक कंटेंट से डिफरेंट होता है. सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि दैट इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के लिए जो कंटेंट हम बनाते हैं उसमें वी कैन प्ले विद आवर इमेजिनेशन. हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, हम बहुत सारे उसमें फैंटेसी यूज कर सकते हैं टू मेक द प्रोग्राम इंटरेस्टिंग. कुछ ऐसी चीजें भी उसमें हो सकती है जो एग्जेजरेशन होता है फैक्ट्स का, चीजों का. जैसे कॉमेडी मूवीज होती हैं उसमें आप देखते होंगे. लेकिन जब हम एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं तो वो जिम्मेदारी स्क्रिप्ट डेवलपर के ऊपर वो चैलेंजिंग है, क्योंकि हमें उसको इंटरेस्टिंग भी बनाना है. जहां हमें कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत है या कुछ और एडिशनल नॉलेज देने की जरूरत है, क्योंकि किताबों में जितना लाइंस में लिखा होता है, देयर इज अ लॉट बिटवीन द लाइन जो टीचर को एक्सप्लेन करना होता है, या हमें डिजिटल कंटेंट से उस गैप को फिल करना होता है. क्योंकि टेक्स्ट बुक्स को हम इंसाइक्लोपीडिया नहीं बना सकते. अगर हम सारी चीजें एक चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन किताब में देंगे तो वो इंसाइक्लोपीडिया बन जाएगा. इसीलिए है कि टीचर को पेडागोजी पता होना चाहिए, कंटेंट पता होना चाहिए, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स और क्या क्या उस चैप्टर से रिलेटेड है वो हमें जानकारी होना चाहिए. इसीलिए एजुकेशनल मीडिया प्रोग्राम बनाना एक चैलेंज है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट भी बनाए रखना है लर्नर का, और साथ ही साथ हम अपने इमेजिनेशन को फ्री भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उससे एक तो एग्जेजरेशन होगा और हो सकता है कहीं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स भी उसमें हो जाएं, गलतियां भी हो जाएं, क्योंकि अगर हम उसको बढ़ा चढ़ा के किसी भी बात को कहेंगे तो ये हमें ध्यान रखना होता है. तो वो इजी टास्क नहीं है, डिफिकल्ट टास्क ही है. कहानी आप ऐसे लिखते हैं तो कहानी आप किसी भी तरह कल्पना करके लिख सकते हैं. जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, लिटरेचर में फिर भी आप अपनी इमेजिनेशन को फ्री छोड़ सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर में होता ही वही है, चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के इंटरेस्टिंग तरीके से कहना, चांद की तुलना व्यक्ति से करना, मामा से करना, उस तरह की चीजें, जो कि ऐसा है नहीं. जब आप साइंस में चांद के बारे में पढ़ाएंगे तो आप ये एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते हैं. वहां हमें कॉन्सेप्चुअली भाई चांद क्या है, उसके फेजेस कैसे बदलते हैं. तो जैसे एक हिंदी कोई कविता ही है या कहानी है, उसमें तुलना चांद के बदलते फेजेस की गई है कि हर रोज पजामा घटता बढ़ता रहता है चंदा का. लेकिन ऐसा हम साइंस में नहीं कर सकते, भाषा में कर सकते हैं. तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि जब हम हार्ड कोर सब्जेक्ट में वीडियो प्रोग्राम्स बना रहे हैं या कोई भी डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. अब इसमें हमें पेडागोजिकल कंसिडरेशंस भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस तरीके से उनको पेडागोजिकली अलाइन करें सब्जेक्ट को. उसमें कुछ पेडागोजी भी होनी चाहिए. एकदम प्लेन लेक्चर खास करके जो फाउंडेशनल लर्नर्स हैं उनके लिए वीडियो में नहीं होना चाहिए कि एक प्रेजेंटर है और वो बस प्रेजेंट कर रहा है अलॉन्ग विद सम. ये 9th 10th 11th 12th में चल जाएगा, लेकिन प्राइमरी क्लासेस में ये तरीका नहीं चलेगा. लेकिन 9th 10th 11th 12th में भी करें, इट शुड बी ऑटो वीडियो लेक्चर शुड आल्सो बी सपोर्टेड बाय
अदर फॉर्म्स ऑफ कंटेंट, ये नहीं कि प्रेजेंटर ही बोले जा रहा है, ऐसा तो क्लास में भी नहीं होता। तो वो क्लास में जो वर्बोस लेक्चर्स होते हैं उससे भी बोरिंग वीडियो होगा फिर, अगर प्रेजेंटर बस बोले जा रहा है उसमें। तो लर्निंग थ्योरीज का हमें ध्यान रखना है कि कहाँ किस कंटेंट पे कौन सी लर्निंग थ्योरी अप्लाई हो रही है। जो कंटेंट हमने चुना है फॉर वीडियो, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उस कॉन्सेप्ट्स के या उस कंटेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि तभी हम उसे उस दायरे में, जैसे 10 मिनट का वीडियो आपने प्लान किया है, या अगर आपने अभी सोचा भी नहीं है कि कितने ड्यूरेशन का हम बनाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव से हमें पता चलेगा इसका ड्यूरेशन क्या होगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव्स फिर फुलफिल होना चाहिए उसमें। तीसरी चीज है कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक कक्षा में अलग अलग प्रकार के लर्नर्स होते हैं। लर्नर्स का लर्निंग स्टाइल उतना ही डिफरेंट होता है जितने कि हमारे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। कौन सा बच्चा कैसे सीखेगा, कौन सा स्टिमुलस उसको अपील कर रहा है जिससे उसकी लर्निंग कंसोलिडेट होएगी, ये हमें जानना भी मुश्किल है। बट ब्रॉडली हम कैटेगराइज कर सकते हैं लर्नर्स को क्या क्या कैटेगरी में। ऑडिटरी लर्नर जो सुन के अच्छा सीखते हैं, जो ऑडियो प्रोग्राम अगर हम करें तो उससे हमारी लिसनिंग भी इंप्रूव होती है। विजुअल लर्नर्स जो कोई भी चीज को जब विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, देख के ज्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर जो कि करके, चाहे वो मेंटल एक्टिविटी हो, ये नहीं कि काइनेस्थेटिक लर्नर केवल हाथ से काम करके या कोई चीज को बना के ही सीख रहा है। मेंटल एक्टिविटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर दिस, जो कॉग्निटिव एक्टिविटी हम कर रहे हैं। हायर क्लासेस में कॉग्निटिव एक्टिविटी, जब हम अपने आप पढ़ते हैं, अपने आप सर्च करते हैं, सेल्फ लर्निंग भी होती है ना, क्लास में जो टीचर ने पढ़ा दिया उसके बाद अगर हम उनको इंगेज करें और उस टॉपिक के बारे में सर्च करने में, तो कुछ लर्नर ऐसे भी होते हैं, तब उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, व्हेन दे एक्सप्लोर देमसेल्व्स अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो इस कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, और इसी तरह से हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखेंगे कि क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं। तो हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए विच caters to those individual differences. इसके बाद ये है डेवलपमेंटल प्रोसेस। किसी भी प्रोग्राम को बनाने का डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें तीन चीजें यहाँ पे आप देख रहे हैं। स्टेप्स इन स्क्रिप्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव जब हमने सोच लिए हैं, तो हमें फिर प्रोग्राम ब्रीफ भी बनाना होता है। प्रोग्राम ब्रीफ से हमें पता चलता है कि हमें कितना दायरे में रखना है और डिफिकल्टी लेवल क्या करना है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट अलग अलग लेवल पे रन करते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाता है। तो जब हम कंटेंट ब्रीफ बनाते हैं तो हमें पता होता है कि इसमें इतने तक हमें जाना है, यहाँ पे स्टॉप करना है। ये नहीं कि हमें जितना नॉलेज है वो सारा नॉलेज हमें उसके अंदर पोर करना है, वो नहीं करना है। बच्चे के लेवल का ध्यान में रखें, किताब में उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है उसको ध्यान में रखेंगे, तो वो कंटेंट ब्रीफ बनाने से हमें वो चीज आसान हो जाती है। और ये सबके आप एग्जाम्पल देखेंगे कि कंटेंट ब्रीफ क्या होता है, स्क्रिप्ट कैसी होती है, स्टोरी बोर्ड कैसा होता है, और कैसे एक जो टाइट स्क्रिप्ट है उस पर बना प्रोग्राम बिल्कुल फिर उसी तरह से होता है जैसे कि हमने इमेजिन किया है कि हमारा प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए। तो ये स्क्रिप्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का प्रोसेस है। फिर डिवाइसेस ऑफ होल्डिंग चिल्ड्रंस अटेंशन, उनके अटेंशन को कैसे हम सस्टेन रखेंगे प्रोग्राम में, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और एक अच्छी स्क्रिप्ट के क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले वी नीड टू नो आर ऑडियंस, कि हमारे ऑडियंस कौन है, क्या वो फाउंडेशनल लर्नर है, मिडिल का लर्नर है, या वो सेकेंडरी लर्नर है। तो वो हमें देखना है, या वो ईसीसी का अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाले लर्नर के लिए हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं। दूसरा, फिर हमें जो थीम और टॉपिक जो वीडियो के लिए सूटेबल है, सारा कंटेंट वीडियो के लिए सूटेबल नहीं होगा, तो हमें देखना है कौन सा थीम या कौन सा टॉपिक है जो एक वीडियो से हम बेहतर तरीके से समझा सकते हैं।
फिर तीसरा स्टेप उसमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रीफ, कि हमें उसका दायरा कितना रखना है, हमें अपने नॉलेज के प्रोसेस में जो हमारा दिमाग जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें बहना नहीं है, बट हमें अपने आप को बांध के रखना है, और उसके लिए हमें ब्रीफ्स बनाने होंगे, कंटेंट ब्रीफ्स। फिर है रिसर्च ऑन दी सब्जेक्ट, फिर हम सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करेंगे, जो भी टॉपिक थी, मैं किताब का तो नहीं लिख देंगे क्योंकि वो तो बच्चे को किताब में ही पता है। जब हम फर्दर रिसर्च करेंगे कि इस पे हमें और क्या देना है, तब हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से अपनी स्क्रिप्ट को क्राफ्ट करेंगे। उसके बाद हमें सीक्वेंसिंग दी कंटेंट, कंटेंट को सीक्वेंस करना है, उसमें इजी से डिफिकल्ट भी होता है, नोन टू अननोन भी होता है। तो किस तरीके से हम अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे, इजी से डिफिकल्ट, नोन टू अननोन, या किस तरीके से हम उसको डेवलप करेंगे, क्राफ्ट करेंगे स्क्रिप्ट को। तो कंटेंट को हमें सीक्वेंस करना होगा, जो भी कंटेंट हमने रिसर्च से निकाला है। इसके बाद है सिलेक्ट दी प्रेजेंटेशन फॉर्मेट। अब हमें प्रेजेंटेशन फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। वीडियो में भी कई सारे प्रेजेंटेशन फॉर्मेट होते हैं, कुछ हम पपेट्स को यूज करके वीडियो बनाते हैं, कुछ प्रेजेंटर अलोंग विद सम एग्जाम्पलर कंटेंट या डिस्प्ले जो उसको करना है। हायर लेवल पे जैसे पैनल डिस्कशन भी हम करते हैं वीडियो में, तो वो पैनल डिस्कशन फॉर्मेट हो जाता है। तो अब हमें प्रेजेंटेशन फॉर्मेट डिसाइड करना है कि इस विषय के लिए कौन सा प्रेजेंटेशन फॉर्मेट उचित है, वो बच्चे के लेवल का भी ध्यान में रखते हुए। इसके बाद है डिवाइसेस ऑफ होल्डिंग चिल्ड्रंस अटेंशन। अटेंशन को ध्यान में रखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उसमें हम देख सकते हैं कि हम सॉन्ग्स का प्रयोग कर सकते हैं, पहेलियों का, रिडल का, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, फन एंड ह्यूमर, पॉज एंड रेस्ट भी बहुत जरूरी है। हमें विदाउट पॉज नहीं उसमें बोलते जाना है या कंटेंट की डिलीवरी करनी है, क्योंकि मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस भी बहुत जरूरी है। हमें ऐसे ही एक्सटेम्पोर विदाउट एनी पंक्चुएशन, पॉज, रेस्ट नहीं उस कंटेंट को डिलीवर करना है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है, राइट मॉड्यूलेशन। इसके बाद इंटरएक्टिविटी, उसमें इंटरएक्टिविटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेजेंटर अपनी बात कह रहा है, वी नीड टू एड्रेस द ऑडियंस, तो भाषा ऐसी होनी चाहिए एज इफ वी आर इंटरएक्टिंग विद द ऑडियंस, तो वो इंटरएक्टिविटी भी इसमें होनी चाहिए। और हमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें सुनिश्चित करना चाहिए। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ऑन स्पॉट भी हो सकता है। मान लीजिए कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे भी वहां पर हो सकते हैं जो कोई क्वेश्चन या इनकी क्वेरी है वो रेज करें और उसका जवाब देते हुए, उससे इंटरएक्टिविटी भी आएगी, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वीडियो अपने आप में कोई भी कंटेंट कंप्लीट नहीं है, उसके साथ हमें बच्चे को इंगेज भी करना है, तो हम उसके बाद क्या कुछ क्वेश्चन भी बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं एंड में, कि अब इन सवालों के आप जवाब खोजें। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्रकार से बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब है कि एक अच्छी स्क्रिप्ट के क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो एक अट्रैक्टिव स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप भी ब्राउज करते हैं टीवी पे, चैनल्स बदलते क्यों हैं, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता, इंटरेस्टिंग नहीं लगे। कोई मूवी भी आप रैंडमली अगर नेटफ्लिक्स पे देखने की कोशिश करें, जब आपको उसको शुरुआत ही नहीं इंगेजिंग लगेगी, तो आप बंद कर देंगे, आप पूरी मूवी नहीं देखेंगे। अगर आप सिनेमा हॉल में गए तो अलग बात है, मजबूरी है, आपने पे किया है, लेकिन टीवी पे आपके पास वो अपॉर्चुनिटी ऑप्शन होता है कि आप उसको फिर बंद कर दें, और वो इसीलिए क्योंकि स्टार्ट ही अट्रैक्टिव नहीं है उसका। फिर कॉन्सेप्ट जो भी है उसको क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट करना चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड कंटेंट होना चाहिए, वो पहले भी हमने बात की है कि उसके कुछ पर्पस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसी के अराउंड हमें स्क्रिप्ट को बनाना है। आपको नींद आ रही है, या तो आप पानी पी ले या सीधे बैठ जाएंगे तो नींद नहीं आएगी। स्ट्रेट बैठ जाइए, आप थोड़ा रेस्ट करके बैठे हुए हैं इसीलिए नींद आ रही है। और पानी पीना है, पानी ले लीजिए। बाहर जाना है, थोड़ी देर बाहर हो आइए।
दूसरा फिर हमें नोन टू अननोन अप्रोच अडॉप्ट करना है, इसकी भी हम बात कर चुके हैं कि नोन टू अननोन, इजी टू डिफिकल्ट, इंटरैक्टिव होना चाहिए, लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए, हमें अपनी भाषाई विद्वता नहीं दिखानी है वहां पे, हमें सिंपल जो भाषा समझ में आ जाए तो एज सिंपल एज पॉसिबल वो भाषा रखना चाहिए। ट्रांजिशन जैसे एक सब टॉपिक से दूसरे जो हमने सीक्वेंसिंग की है तो वो सीक्वेंसिंग का ट्रांजिशन भी स्मूथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बात हमने अब्रप्टली खत्म करी फिर हम दूसरी बात पे आ गए, तो वो स्मूथ ट्रांजिशन रहना चाहिए। फिर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमर एंड फन जहां कहीं भी पॉसिबल हो वहां हमें जबरदस्ती नहीं ऐड करना है, लेकिन कोशिश करनी है कि हम वो कर पाए अगर। फिर है रीइंफोर्समेंट विद वैरायटी ऑफ लिंकेजेस, अगर उस कॉन्सेप्ट के और दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ लिंकेजेस बन रहे हैं, विषयों के साथ लिंकेजेस बन रहे हैं, तो वहां हमें उसकी बात भी करनी चाहिए जिससे कि वो टॉपिक इंटरेस्टिंग बन जाता है। साइंस का अगर सोशल साइंस के साथ कहीं कुछ लिंकेजेस बन रहे हैं तो वो हमें करना चाहिए। जैसे हिस्ट्री में अगर लें तो कोई ऑब्जेक्ट जो हमारे स्रोत होते हैं हिस्ट्री को स्टडी करने के सोर्सेस, क्योंकि जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो हमारे कंट्री में डॉक्यूमेंटेड भी नहीं थी, उसको क्रिएट किया गया है। हिस्ट्री के कितने लोग हैं यहाँ पे या सोशल साइंस के, हाँ। तो वो क्रिएट किया गया है उसको सोर्सेस के आधार पर, और कोई वस्तु कितनी पुरानी है जो हमें खुदाई में रिसोर्सेज मिलते हैं वो कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है, और जो कि केमिस्ट्री है, साइंस है। तो वहां ऐसा नहीं कि हार्ड बाउंड्रीज हमें सब्जेक्ट की लानी है, जहां कहीं भी संभव हो उस तरह के लिंकेजेस हमें बनाने की कोशिश करना चाहिए। इसके बाद है स्मूथ क्लोजर, उसका क्लोजर भी एब्रप्ट नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए ताकि अगला जो विषय है इसके बाद टॉपिक आने वाला है उसमें बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। जैसे जब आप लेसन प्लान भी बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेसन प्लान में क्लास को वार्म अप करने के लिए हम उनका प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग करते हैं, एंड में हम रिकैप करते हैं। तो इसी तरीके से वीडियो में भी हम एक तरीका हो सकता है स्मूथ क्लोजर के लिए कि हम रिकैप करें, और अगर वो सीरीज है तो बताएं कि अगले सीरीज में हम क्या करने जा रहे हैं। फिर हमें जहां भी आवश्यकता हो एक स्टोरी बोर्ड भी बनाना है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन, खास करके ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन, इट्स अ टीम वर्क। इसमें ये नहीं है कि आप अपना विषय जानते हैं, आप एकेडमिशियन हैं तो आप उसका प्रोडक्शन भी कर देंगे, हालांकि प्रोडक्शन का एक्सपोजर आपको दिया जाएगा, क्योंकि अगर हम लिख भी रहे हैं जब तक हमें प्रोडक्शन के नुआंसेस नहीं पता है तो प्रोड्यूसर आपकी स्क्रिप्ट पे कैसे काम कर रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर सारे विषय नहीं जानता है, प्रोड्यूसर्स की टीम अलग है, हम उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो साइंस की बारीकियां समझ ले, सोशल साइंस समझ ले, उसमें इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारी चीजों की उसको समझ हो। इसीलिए टीम वर्क है ये, इसमें जो स्क्रिप्ट डेवलपर है उसको जुड़े रहना पड़ेगा। स्टोरी बोर्ड से ये होता है कि प्रोड्यूसर को ये पता चल जाता है कि सीन बाय सीन हम क्या चाह रहे हैं, सीन बाय सीन डिपिक्शन होता है वो आपकी स्क्रिप्ट का। तो ये एक टेम्पलेट है जिसमें पहले सीन में क्या आएगा, दूसरे सीन में क्या आएगा, तीसरे सीन में क्या आएगा, और वहां पे आप क्या विजुअल चाह रहे हैं वो हमें पता चलता है। तो स्टोरी बोर्ड क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज अ स्टोरी बोर्ड, इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ योर वीडियो विल अनफोल्ड, कैसे वीडियो अनफोल्ड होगा शॉर्ट बाय शॉर्ट। इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ स्क्वायर्स with illustrations or pictures representing each shot, with notes about what going on the screen and what is being said in the script during the shot. So ये जैसे कॉमिक बुक होती है, इसीलिए इसमें लिखा है थिंक ऑफ इट एज सॉर्ट ऑफ अ कॉमिक बुक वर्जन ऑफ योर स्क्रिप्ट। तो वो कॉमिक बुक की तरह, और इसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो, इसमें तो एक प्रोफेशनल ये स्टोरी बोर्ड है, आप एक क्रूड ड्राइंग भी बना सकते हैं, प्रोड्यूसर को उससे आइडिया हो जाएगा कि आप हर सीन में क्या चाह रहे हैं, हर शॉट में क्या चाह रहे हैं। फिर स्क्रिप्ट स्टोरी बोर्ड की जरूरत
क्यों हमें पड़ती है। स्क्रिप्ट की तो हमने जान लिया, लेकिन स्टोरी बोर्ड की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। बेस्ट वे टू शेयर द विजन, अपना विजन शेयर करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मेक्स प्रोडक्शन इजियर, जो मैंने आपको बता भी दिया, एंड इट सेव्स टाइम। प्रोड्यूसर हर समय आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। यूज दी स्केच इट मेथड, कि आप स्केच भी कर सकते हैं, वो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। गो विद दी रैपिड टेम्पलेट, आप एक टेम्पलेट जैसे कि हमने दिखाया उस तरह का टेम्पलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम स्टोरी बोर्ड बनाने में कोलैबोरेटिव टूल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, कि कोलैबोरेट करके जो टीम के साथ हम उसको बनाएं। तो हमें अब क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। एक तो जब हम रिसर्च करेंगे तो रिसर्च केवल सब्जेक्ट पे ही नहीं करना है, हमें विजुअल क्या चाहिए उस पर भी हमें रिसर्च करना है। तो हमें पता चलेगा कि जो भी उसमें मूविंग या स्टिल इमेजेस हैं उसका सोर्स क्या है, वो सोर्स हमें ढूंढना है, वहां से वो निकालना है। और फिर हमें उसको जो अपने जो कंप्यूटर है सिस्टम में उस पर इंपोर्ट करना है। और अगर हम खुद ही बना दें, हम खुद भी बना सकते हैं, तो मूवी मेकिंग सॉफ्टवेयर भी आपके कंप्यूटर के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के साथ मूवी मेकर है, तो वो भी हम बना सकते हैं। तो उसमें फिर हमें क्या करना है कि हर जो हमारी क्लिप है उसकी सीक्वेंसिंग करके हमें उस सॉफ्टवेयर में ऐड करके फिर उसको सेव करना है। उसके साथ हम चाहे तो कमेंट्री भी डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं। और फिर हमें उस जो तैयार हो गया उसको हमें एक्सपोर्ट करना है और कहीं सेव करना है अपने डिवाइस में। ये हम अगर खुद बना ले हैं तो हम कर सकते हैं। अब ये कुछ कैमरा शॉट हैं, इनका भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि तभी हम अपनी स्क्रिप्ट में लिखेंगे कहाँ हमें कैसा शॉट चाहिए, क्लोजअप कहाँ पे चाहिए, मिड शॉट कहाँ चाहिए। तो ये कैमरा शॉट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो इसमें हम देखें कि एक वाइड शॉट के बारे में है, जिससे कि हमें सेटिंग क्या है उस स्पेस की उसका एक विजुअलाइजेशन होता है। तो इसमें कौन सा आपको लग रहा है कि वाइड शॉट कौन सा है? पहला वाला जो मैदान दिखाई दे रहा है। फिर लॉन्ग शॉट है, लॉन्ग शॉट है फुटबॉल वाला। और ये मिड शॉट है, जो लड़की वाला है ये मिड शॉट है। तो ये कुछ कैमरा शॉट्स हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्लास में लड़की हाथ उठा रही है, हाथ खड़ा कर रही है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन हाथ उठा रहा है, ये मिड शॉट का हम प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल है बस ये। अब ये कुछ और कैमरा शॉट हैं, इसमें मीडियम क्लोजअप, क्लोजअप, बिग क्लोजअप एंड एक्सट्रीम क्लोजअप है। अब बताइए इसमें से मीडियम क्लोजअप कौन सा है? अच्छा, हाँ वो मीडियम क्लोजअप है। क्लोजअप कौन सा है? जो दो बच्चे हैं। बिग क्लोजअप कौन सा है? रो रहा है बच्चा, बच्चा रो रहा है। नहीं, बॉल वाला। एक्सट्रीम क्लोजअप है वो, जो नहीं बच्चा वाला एक्सट्रीम। हाँ डिफरेंस ये है, जब हम एक्सट्रीम क्लोजअप दिखाते हैं तो हमें उसमें एक्सप्रेशन दिखाने के लिए कि एक्सप्रेशन क्या है। जो बच्चा रो रहा है हालांकि उसका उसमें सर नहीं दिख रहा है, फेस का एक्सप्रेशन ही हाँ, तो फेस का एक्सप्रेशन कैप्चर हो रहा है, इसीलिए हम इसको एक्सट्रीम क्लोजअप कह रहे हैं। अब बिग क्लोजअप में जो है वहां आप देख रहे हैं कि एक गोल्फ की बॉल है, तो उसका एंगल किस तरीके से उन्होंने सेट किया है शॉट का, क्योंकि वो हमें दिखाना होता है। और फिर हो सकता है वहां से ऊपर जाए जिसने वो स्टिक पकड़ी हुई है उसके ऊपर हम पैन कर सकते हैं कैमरा। ये कुछ और कैमरा एंगल्स हैं। टॉप एंगल, ओवर द शोल्डर एंगल, दूसरा है पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू, और डच एंगल, बर्ड्स आई व्यू।
आगे भी है इसमें, मतलब इसमें सारे नहीं दिए हुए हैं फोटो। टॉप एंगल जैसे आप लोग आजकल देखते होंगे ना, ड्रोन से भी जो लेते हैं। और अगर हम स्टूडियो में शूट कर रहे हैं और कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है या कोई डेमो दे रहा है, तो टॉप एंगल कैमरा से फिर बस जो प्रेजेंटर है उसके हाथ और जो एक्टिविटी हो रही है वो एक्टिविटी टॉप एंगल से होती है। जो ड्रोन से लेते हैं वो है बर्ड्स आई व्यू। जैसे बर्ड उड़ती है तो उसको नीचे का जो दिखाई देता है, तो ड्रोन से हम बर्ड्स आई व्यू कैप्चर करते हैं, जिससे हमें सारा एक टॉप से व्यू मिलता है जो कि ओपन में होता है। लेकिन टॉप एंगल जो है वो स्टूडियो में या ओपन में भी टॉप से हम जो एक्टिविटी हो रही है उसको लेते हैं। ओवर द शोल्डर जो ये लड़की का है, हाँ हाँ, तो उससे हम कैप्चर करते हैं। डच एंगल आप पीओवी, पीओवी जो है पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें इसको इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू कह रहे हैं, इसमें हमें ऐसा लगता है एज इफ वी आर पार्ट ऑफ द सीन। तो जिसमें ये कार का बोनट दिखाई दे रहा है, तो ये कार बहुत स्पीडिंग है। जब आप कोई मूवी भी देखते हैं जिसमें बहुत स्पीडिंग व्हीकल है, तो यू फील एज इफ यू आर ऑल्सो इनसाइड द कार, और हमें वो थ्रिल महसूस होता है स्पीडिंग कार वाला, और हम भी डर रहे होते हैं कि ये कब कहाँ बैंग करेगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू एंगल है जिसमें बस बोनट दिख रहा है और स्पीडिंग कार है। डच एंगल में टिल्टेड कैमरा से लेते हैं, जैसे नीचे वाला वो एक लड़का बैठा हुआ है, उसमें ज्यादातर जो हॉरर और इस तरह की फिल्में होती हैं उसमें ये वाले एंगल यूज किए जाते हैं, जिसको हम डच एंगल कहते हैं। अब ये है डूज एंड डोंट्स ऑफ फिल्मिंग, कि हमें क्या करना चाहिए। स्टार्ट रिकॉर्डिंग बिफोर द एक्शन टेक्स प्लेस। कुछ चीजें हम पहले से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे अगर एक्सपेरिमेंट ही है तो उसके इक्विपमेंट्स को हम कुछ शॉट्स रख सकते हैं, कहीं जरूरत हो तो बाद में हम उसमें दिखा सकते हैं। और अगर ज्यादा हमारा कुछ भी हो गया तो बाद में कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा अगर हम ले लेते हैं फुटेज तो उसको हम ट्रिम कर सकते हैं। और stop recording after the action takes place. You can always trim any excess later. फिर also take still shots of useful information के still shots भी हमें ले लेने चाहिए। और बाद में जो शॉट है, जैसे कई बार पैनल डिस्कशन चल रहा है तो दूसरा व्यक्ति नॉड कर रहा है या उसने नहीं किया, तो वो क्लोजअप हम नॉट करते हुए ले सकते हैं, जो बाद में हम एडिटिंग के दौरान उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर डोंट्स ऑफ फिल्मिंग में बहुत ज्यादा हमें जूम एक्सेस नहीं करना चाहिए अगर जहां जरूरी नहीं है। पहले हमें शॉर्ट फ्रेम करना चाहिए, फिर देखना चाहिए जूम करने की जरूरत है या नहीं। इफ यू मस्ट जूम ड्यूरिंग द शॉट, अवॉइड जर्कीनेस नहीं होना चाहिए अगर जहां जूम आवश्यक है। तो कई बार जूम करने के दौरान जर्क्स भी आ जाते हैं, तो वो स्मूथ होना चाहिए। फास्ट पैन हम कहते हैं, जो जैसे ये क्लासरूम का अगर हम ले तो उस एंगल से इस एंगल तक सबका लेना है, तो हमें कैमरा ऐसे पैन करना पड़ेगा। तो स्टैटिक जो व्यू है उसको की पैनिंग की आवश्यकता नहीं है। जहां कुछ एक्टिविटी हो रही है या कुछ हम खास दिखाना चाहते हैं वहां हम पैन करेंगे। The objective is to minimize audience nausea, कि बहुत ज्यादा जर्की लगेगा कोई तो एक नॉजेटिक फीलिंग ऑडियंस को हो सकती है। तो हाँ, पैन एक जैसे हमें इस ग्लास का पूरा लेना है तो कैमरा को पैन करना। हाँ, हम कैमरा ऐसे घुमाएंगे तभी ये पूरे क्लास का वो ले सकते हैं। हाँ, जैसे पैनोरेमा रहता है, तो अब बिना पैन के भी हम उसको भी हमें घुमाना तो पड़ता ही जब हम पैनोरेमिक व्यू लेते हैं। ये यहाँ तक खत्म है। इसके बाद आपको प्रोसेस जो है, पीपीटी यहाँ खत्म हो गई है, प्रोसेस की लास्ट स्लाइड है। उससे पहले आपको ये जो सारी चीजें बताई गई हैं इसमें से जो जो आपके लिए यूजफुल है, वी कैन हैव अ डेमो आल्सो। मेरे साथ हैं डॉक्टर गुलशन, तो she will help me with the demo of the content.
इसको वो कर दो मिनिमाइज, लास्ट Excuse टाइम me, बाद ma'am. में दिखाएंगे। दो हाँ क्वेश्चन है मैम। जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं कोई भी एजुकेशन वीडियो की, तो क्या उसकी हमेशा वेटिंग करानी जरूरी होती है? एक सवाल। दूसरा है कि जैसे पॉडकास्ट और इंटरव्यू है, उसमें तो एक ही सीन है, तो क्वेश्चंस को उसको आपने कहा था ना कि स्टोरी बोर्ड, तो उसका स्टोरी बोर्ड बनाना जरूरी है? नहीं, सबका स्टोरी बोर्ड नहीं बनेगा। जब हम पैनल डिस्कशन करते हैं, हाँ, पैनल डिस्कशन सेमी स्ट्रक्चर्ड हमारी स्क्रिप्ट हाँ, होनी चाहिए। उसमें अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या मैं उसको क्वेश्चन वाइज कर सकती हूँ स्टोरी बोर्ड का? एक क्वेश्चन है, एक सीन, दूसरा क्वेश्चन आंसर है, दूसरा सीन, तीसरा है। उसमें सीन तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एक तो ही है। हाँ ऑन दी स्पॉट ही, जैसे आपने जिससे सवाल पूछ रहे हो, पैनल में 3 लोग हैं, हाँ, तो आप अगर एंकर हैं तो आप एड्रेस करेंगे जिससे सवाल आप पूछ रहे हैं। अच्छा। तो उसमें 2 तरह से होता है, कभी आप आपस में बात भी कर रहे हैं तो एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए एक कैमरा कैप्चर करेगा, वहां 2-3 कैमरा लगे होते हैं। तीन और जब जो बोल रहा है उसके लिए हमें करना है तो एक कैमरा में अगर कोई खास चीजों पे स्ट्रेस देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर लंबा होता है, कुछ तो आप एक दूसरे को देखते हुए बात करते हैं, फिर आप कैमरा को फेस करके बात करते हैं। ये हम बता सकते हैं कि कब आपको कौन से कैमरा में देखना है। प्रोड्यूसर को समझ जाना चाहिए, अगर जो व्यक्ति आंसर कर रहा है वो अपने कैमरा में देख रहा है तो दूसरे को फिर हटा देना चाहिए वहां से, औरों को फिर कैप्चर नहीं करना चाहिए अगर 3 लोग बैठे। पहला जो था मैम वेटिंग का, क्या जरूरी होता है? ऐसे की तो वेटिंग नहीं हो सकती जैसे आप पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जो हार्डकोर स्क्रिप्ट है आप वेटिंग करा लें तो उससे फायदा ही होगा, क्योंकि और लोगों के भी उसमें व्यू आ जाते हैं, पता चल जाता है। तो आपकी कोई क्लॉज होता है कि इतने मिनट का प्रोग्राम है तो कराएं? कोई क्लॉज है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। अभी हम एक पहले वीडियो देखते हैं, जो है कि पहिए का आविष्कार कैसे हुआ। एक दिन मानव ने ढलान पर देखा एक लुढ़कता लट्ठा। एक दिन मानव ने ढलान पर देखा एक लुढ़कता लट्ठा। गोल 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 लुढ़का ढलान पर पहुंचा नीचे फैले मैदान पर। गोल 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 गोल। देख उसे कुछ उसने सोचा, सिर खुजलाया किया विचार। मैं तो इसको ढोढो थकता, मैं तो इसको ढोढो थकता, पर यह तो खुद भी चल सकता। गोल 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 गोल। बांध इन्हें घर में लुढ़काऊं, रख इन पर भारी सामान। हाँ, पल में काम मेरा हो जाए, पल में काम मेरा हो जाए, मेहनत भी मेरी बच जाए। हाँ, गोल 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 गोल। फिर उसने कुछ और भी आंका,
धुरी से दो बांधा, एक धुरी से दो बांधा, धीरे धीरे किया सुधार। हाँ, यूं हो गया पहिया तैयार, यूं हो गया पहिया तैयार, यूं हो गया पहिया तैयार। गोल 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 पहिया। क्रेडिट भी मैंने इसलिए दिखाया कि क्रेडिट को भी हम क्रिएटिविटी के साथ दिखा सकते हैं। इसमें पहिया घूम रहा है और साथ में क्रेडिट्स आ रहे हैं प्रोग्राम के। तो ये इसका अगर हम एजुकेशनल वैल्यू भी देखें, हालांकि ये अपने आप में भी पहिया के निर्माण का प्रोसेस, क्योंकि पहिया इवॉल्व हुआ है, आविष्कार भी हुआ, लेकिन अभी तक भी इवॉल्व हो रहा है पहिया। उसके बहुत सारे रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक इवोल्यूशन है जो निरंतर चल रहा है। कैसे अर्लीस्ट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस जो हुई हैं दुनिया में, उनको किसने बनाया, उसकी परिकल्पना किसने की, ये हम जानते नहीं हैं। बट स्टिल दे चेंज द पेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो मानव सभ्यता है, उसके विकास की गति को काफी उसने इन इन्वेंशंस ने तेज कर दिया। जैसे कि पहिया है, उसमें से एक इन्वेंशन। दूसरा आग की खोज है, कि आग की खोज से बहुत परिवर्तन आए मनुष्य के जीवन में। और खेती की शुरुआत जो हुई, जो फ्लोरा एंड फौना तो पृथ्वी पे उगता ही था, पर उसको कैसे उगाया जाता है उसको सीखना, उसकी कला। तो ये भी मनुष्य ने, ये भी स्पेकुलेशन बेस्ड ही है कि किसने ये ऑब्जर्व किया होगा और उसके बाद खेती की शुरुआत हुई होगी। और हम देखें तो सेटल्ड लाइफ की शुरुआत उसी से हुई। जब खेती की शुरुआत हुई तो ह्यूमन सेटलमेंट उसके बाद भी डेवलप हुई। तो इस एक कोई भी आविष्कार को हम ले लें तो उससे हम बहुत सारे तरह की लर्निंग की ओर जा सकते हैं। तो कोई भी कार्यक्रम टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई भी डिजिटल कंटेंट, अगर हम ये माने कि ये हमने प्ले कर दिया और 15 मिनट 10 मिनट बच्चा इसके साथ इंगेज हो जाएगा, we have to engage the learners with the content that we are teaching. It should be part of your lesson plan, ना कि इंडिपेंडेंट ये अपने आप में है जिसको बच्चे देख रहे हैं। एक तरीका हो सकता है कि आप इनको फ्लिप्ड लर्निंग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कंटेंट भैया आपने बच्चों के साथ शेयर कर लिया एज वीडियो उनके पेरेंट्स के साथ, अगर लर्नर्स के पास हम मोबाइल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो, और बच्चे उसको देख कर आए और क्लासरूम का टाइम हम डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए या उससे अलाइंड जो और लर्निंग है उसमें प्रयोग करें। ब्लेंडेड और फ्लिप्ड लर्निंग का यही कॉन्सेप्ट है कि हमें ऑनलाइन एक्टिविटी और जो ऑफलाइन एक्टिविटी है उनको ब्लेंड करना है। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहिए से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मनुष्य के लिए आसान हो गया, यात्राएं करना आसान हो गया। इससे इकोनॉमिक्स से भी जोड़ सकते हैं हम उसको, उससे बिजनेस बढ़ा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ा और हम नई नई सभ्यताओं को और दूसरे स्थानों को देखने लगे। अब आपने इसमें ऑब्जर्व किया होगा कि सभी तरह के शॉट हैं। जब आप इसका स्टोरी बोर्ड देखेंगे वो तब समझ में आएगा। पहले हम स्क्रिप्ट देखते हैं कि स्क्रिप्ट इसकी किस तरीके से बनी है।
अब हम 2 कॉलम की स्क्रिप्ट नॉर्मली आसान होती है, जिसको हम 2 कॉलम्स में डिवाइड करें। हाँ, इंग्लिश कर, हिंदी कर लो, हिंदी कर लो। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो सीन आया था वो क्या था। पृष्ठभूमि में बजता गति का प्रतीकात्मक वातावरण दर्शाता संगीत। संगीत भी ऐसा चुना गया जिससे एक स्पीड का कोनोटेशन हो, हमें स्पीड का एहसास हो, क्योंकि म्यूजिक भी अपने आप में हमें बहुत सारी चीजों का एम्बियंस उससे निर्माण होता है। और विजुअल, एक कॉलम में हम ऑडियो क्या आएगा, दूसरे कॉलम में हम उसके साथ विजुअल्स क्या आएंगे ये लिखते हैं। इसको स्क्रॉल करो तो जिसमें बांसुरी से फ्लोट होते हुए संगीत के नोट्स के साथ आता है शीर्षक पहिए का आविष्कार। तो उसमें बांसुरी से म्यूजिक के नोट्स निकल रहे थे। और फिर जो क्लोजअप है वो हवाई जहाज के पहिए का क्लोजअप है, फिर उड़ता हुआ हवाई जहाज आता है, फिर कार के पहिए का क्लोजअप है, सड़क पर दौड़ती हुई कार। केवल ये टाइटल के बाद इतने सारे विजुअल म्यूजिक के साथ आ रहे हैं। स्केट्स पर दौड़ता बच्चा, बाइक पर जाता राहगीर, आसमान पर चढ़ता गोलाकार सूरज, घूमती धरा, गोल गोल अक्षर गोलाकार घूमते हुए, जो गोल गोल लिख के आ रहा था। आगे करिए। इसके बाद जो लिरिक्स हैं वो शुरू होते हैं। एक दिन मानव ने ढलान पर देखा एक लुढ़कता लट्ठा। तो इसमें प्रागैतिहासिक काल का वातावरण, प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है उसका वातावरण, वहीं ढलान पर लुढ़कता एक लट्ठा और उसे गौर से देखता प्रागैतिहासिक मानव। तो इस तरीके से हर बोल के साथ जो हमें विजुअल है वो विजुअल हमने लिखे हैं ताकि ये प्रोड्यूसर के लिए आसान हो कि उसको क्या करना है। हाँ, स्क्रॉल करते हैं, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं। ये आपसे शेयर कर लेंगे हम स्क्रिप्ट, डॉक्टर एंजल शेयर कर लेंगे, उनके पास है ये ऑलरेडी। इसके बाद स्टोरी बोर्ड अगर हम देखें, देखिए पहला शॉट यही था वीडियो में, फिर दूसरा शॉट है पहिए का क्लोजअप, फिर एरोप्लेन, उसके बाद फिर कार का पहिया हमें दिख रहा है। इसके बाद ये एंगल कौन सा है जो आ रहा है, पीओवी। हाँ, फिर इसमें मिड शॉट भी है, क्लोजअप भी है, एक्सट्रीम क्लोजअप देख रहे हैं, आई वाला एक्सट्रीम क्लोजअप है, इसमें केवल आंख कैप्चर हुई है। आगे अगला वाला, अच्छा, फिर ये आगे देखिए, नेक्स्ट स्वेट वगैरह है उसको भी लिख के रखना। स्टोरी बोर्ड में स्वेट जैसे लिखा है तो हाँ। अब आप कह रहे थे कि वेटिंग भी क्या जरूरी होती है, तो ये स्क्रिप्ट बनने के बाद इस पे डिस्कशन हुआ था, जिसको हम वेटिंग कह सकते हैं। तो ये राय आई कि ये बहुत अर्बन सेंट्रिक लग रहे हैं जो इसमें एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं, विजुअल्स बहुत अर्बन सेंट्रिक हैं, जैसे स्केट्स है, कार है, एरोप्लेन है। तो उसमें फिर आपने देखा होगा, अभी स्टोरी बोर्ड में हालांकि वो सीन नहीं है, वीडियो में आपने देखा होगा एंड में वो एक बच्चा पहिए से खेलता हुआ आ रहा है, क्योंकि पहिए से ऐसे भी बच्चे खेलते हैं। क्योंकि वो एग्जाम्पल के साथ हम खत्म कर सकते हैं तो हर बच्चा उसके साथ रिलेट करेगा। और ये सारी चीजें तो चाहे अर्बन सेंट्रिक एग्जाम्पल है, रूरल सेंट्रिक भी थे हालांकि उसमें। तो और जैसे लकड़ी का पहिया हो गया, बैलगाड़ी हो गई, वो सब भी थे। लेकिन जो बच्चों का या ह्यूमंस का एंगेजमेंट था वो ज्यादातर अर्बन सेंट्रिक था, स्केट्स है, बाइक है, एरोप्लेन है।
तो यहाँ फिर वो खेलता हुआ बच्चे का ऐड किया गया है इसमें, तो इससे ये लोगों के व्यूज आ जाते हैं, तो उससे आपका जो आइडिया है उसको स्ट्रेंथन ही होता है जितने हम राय लेते हैं औरों की, तो पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। जो स्केचेस है, हम्म, जो स्केचेस है, इन्हीं को एनिमेट किया गया है। नहीं, इनसे एनिमेट नहीं हुआ, ये तो प्रोड्यूसर को उसको एक आइडिया मिला कि हर सीन में सीन बाय सीन क्या उसको चाहिए। नहीं लिखा हुआ है नीचे, तो बाद में एनिमेशन अलग से बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन सीक्वेंस है ये, म्यूजिक। सीन नंबर 1 2 3 उस तरीके से अच्छा वो मतलब दैट इज नेसेसरी या नहीं फिर हम उसके नहीं बिना ऐसा कुछ नहीं, वो पता चल ही रहा अंडरस्टूड है। कंटिन्यूटी में है ना। इसमें मैम हम टाइम क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट भी है ना, जी जी और स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ है। इसमें हम टाइमिंग्स दे सकते हैं साथ साथ हाँ टाइम भी दे सकते हैं, कि ये फर्स्ट सीन है तो ये इतनी देर तक हाँ ये भी दे सकते हैं, आप चाहे तो दे सकते हैं। जरूरी ये स्टोरी बोर्ड जरूरी है अगर बिना इसके नहीं अगर जरूरत है तो, लेकिन अगर आपने जैसे इसमें स्क्रिप्ट भी इस तरीके से लिखी गई है कि वो भी एक स्क्रिप्ट कम स्टोरी बोर्ड की तरह भी ला सकता है, लेकिन ये स्टोरी बोर्ड जो एनिमेटर है इसका उसने बनाया है, उनको लगा कि मुझे स्टोरी बोर्ड भी बना लेना चाहिए, तो स्टोरी बोर्ड उन्होंने बनाया है, तो आप बना भी सकते हैं। और जो प्रेजेंटर है क्या ये जरूरी है कि स्क्रिप्ट राइटर अलग हो और प्रेजेंटर अलग हो? नहीं ऐसा जरूरी नहीं, प्रेजेंटर है वो स्क्रिप्ट राइटिंग भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेजेंटर और जो स्क्रिप्ट राइटर है वो अलग है। अगर आप वीडियो लेक्चर बना रहे हैं तो जिसने लिखा है वही प्रेजेंट करे, क्योंकि उन्होंने ही रिसर्च करी है। बस ये है कि वॉइस टेस्टिंग होती है, अगर वो आपकी वॉइस बिल्कुल ही उसके लायक नहीं है तब एक दूसरी बात है, लेकिन अगर आपकी वॉइस क्वालिटी ठीक है जो चलेगी उसके लिए तो अच्छा यही है एजुकेशनल प्रोग्राम में कि सेम व्यक्ति ही करे तो अच्छा है जिसने रिसर्च किया है स्क्रिप्ट लिखी है। लेकिन जो ऑडियो प्रोग्राम्स होते हैं, ऑडियो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो कानों के लिए लिखे जाते हैं ना कि आंखों के लिए। आप सारा सेंस यू हैव टू मेक बाय योर ईयर्स कि क्या चल रहा है, तो उसमें म्यूजिक, उसमें जो आवाज है उनका मॉड्यूलेशन वो बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वी आर राइटिंग फॉर द ईयर्स। अगर बच्चे की आवाज है तो वहां फिर हमें बच्चे को ही लेना है, अगर कोई बूढ़े व्यक्ति की आवाज है तो हमें उसको ही लेना है। अगर डॉक्यूमेंट्री बन रही है तो डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा होगा वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है डॉक्यूमेंट्रीज में, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंटेशन है किसी भी चीज का, किसी भी प्रोसेस का, तो उससे फैक्ट बेस्ड है या प्रोसेस बेस्ड भी हो सकता है। तो उसमें जब तक वॉइस की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी तब तक आप लर्नर्स को एंगेज नहीं कर पाएंगे, तो ये कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपका जो ये स्टोरी बोर्ड है ये आपके पास स्पेशल एनिमेटर है, लेकिन हमारा जो रिसोर्सेस है डायट में या एससीईआरटी में, कैन वी राइट इट, कैन वी एक्सप्लेन इट इन द स्टोरी बोर्ड, एक्सप्लेन इन वर्ड्स नॉट इन हाँ जैसे मेरा इसमें स्क्रिप्ट है तो उसमें वर्ड्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि ये से हमारे पास ऐसे ही प्रोफेशनल एनिमेटर नहीं है ना। नहीं आई थिंक देयर इज एन एप्लीकेशन आल्सो क्रिएटिंग अ स्टोरी बोर्ड। हाँ उससे भी आप बना सकते स्टोरी बोर्ड दैट करके नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको बनाना चाहिए या प्रोड्यूसर की डिमांड है तो आप बनाइए, नहीं तो इस प्रोग्राम की भी आपने स्क्रिप्ट में देखा होगा कहाँ क्लोजअप चाहिए, कहाँ कैसा शॉट चाहिए, वो लिखा है तो वो भी काफी है। और वैसे भी आप टीम में काम करेंगे तो आगे उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको कहाँ क्या चाहिए। तो ये समझ में आ गया कैसे स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्ड और प्रोग्राम अलाइंड होना चाहिए। मैम एक कोई पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट दिखा सकते हैं? नहीं पॉडकास्ट की तो नहीं है, एनसीईआरटी में से काफी पॉडकास्ट आ रहे हैं, इस तरह से हम लोग भी डेवलप करना चाह रहे हैं। मैं बोल दूंगी आपके लिए, अरेंज कर देंगे, हमारे यहाँ प्रोड्यूसर हैं अजीत होरो, उनके पास होगी। वीडियोस देखते रहते हैं तो उस तरह से हम लोग अपने आप बनाना चाहते हैं। अब एक वीडियो लेक्चर की स्क्रिप्ट, वो जो वाला फोल्डर था ना इनके पास उसमें
अब एक आपको वीडियो लेक्चर की भी स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं, ये भी उसी तरह से 2 कॉलम में है और ये टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द थीम, पुरानी किताब पर बेस्ड है क्योंकि उसमें थीमेटिक थी, ईवीएस की जो बुक्स थी, अंडरस्टैंडिंग द थीम, ट्रैवल एंड पेडागोजिकल अप्रोचेस टू ट्रांजेक्ट द थीम। अब इसमें हमें ये लिखना जरूरी है कि प्रेजेंटर को कहाँ पर हमें कहाँ प्रेजेंटर को दिखाना है उसमें। तो जितने वर्ड हैं उसमें आप देखेंगे एक पैराग्राफ है शुरू में, उसके आगे लिखा है प्रेजेंटर, ये प्रेजेंटर बोलेगा। लेकिन जब रिकॉर्ड होती है स्क्रिप्ट तो प्रेजेंटर पूरे टाइम नहीं दिखना चाहिए। रिकॉर्ड होते समय आप दिख जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लिख देंगे तो बाद में एडिटिंग के समय पता होगा कहाँ से प्रेजेंटर को हटा के फिर वहां पर हमें बुलेट पॉइंट्स डालने हैं। क्योंकि प्रेजेंटर की सुविधा के लिए अगर उसका एक्सटेम्पोर हो जाए तो ज्यादा ठीक है, लेकिन हमने अगर स्क्रिप्ट दी है तो फिर एडिटिंग में उतने से प्रेजेंटर को हटा के और विजुअल्स डाले जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे ऑन स्क्रीन कैप्शंस क्या क्या आएंगे प्रेजेंटर के बाद। तो इसमें 20-80 का रेशियो होना चाहिए, प्रेजेंटर को 20% ही हमें दिखे तो ठीक है, बाकी टाइम में हमें विजुअल से उसको एनरिच करना है। मैम ये 20% वाला कॉन्सेप्ट है, ये 20% फुल स्क्रीन पर है या पाइप का भी कैलकुलेट करते हैं? पीआईपी पे भी प्रेजेंटर कभी-कभी दिखाते हैं, तो उसको भी 20% में काउंट कर सकते हैं? वो जब हम प्रेजेंट करते हैं तब होता है ना। हाँ मैम, कभी-कभी प्रेजेंटर वीडियो प्रोग्राम में नहीं होता, जब आप वो कर रहे होते हो ना बहुत सारे वीडियो होते हैं कुछ टाइम पे। हाँ, लाइव जब कर रहे होते हैं तो उसमें पीपीटी एक साइड में प्रेजेंटर आता है। हाँ, उसमें नहीं हम कर सकते, अगर साइड में आप प्रेजेंटर दिखा रहे हैं ना मैम, वो पाइप को हम 20% में काउंट नहीं करेंगे। जब फुल स्क्रीन आ रहा है उसको तभी काउंट करेंगे। और वो ना ही रहे तो अच्छा है, डिस्ट्रैक्शन होता है। जहाँ हमें कुछ बुलेट पॉइंट पढ़ने हैं वहां प्रेजेंटर का रहना जरूरी नहीं है। अगर बैकग्राउंड से ही उनकी वॉइस आ रही है तो एक तो हमें स्क्रीन पे ज्यादा स्पेस मिल जाता है जो भी विजुअल है या बुलेट पॉइंट है उसको दिखाने का, तो प्रेजेंटर को वहां डालने की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, तो ये इस तरीके से कहां पर इसमें माइंड मैप आएगा और कहां विजुअल्स आएंगे वो सारा डिपिक्शन इसमें किया हुआ है। अब एक उदाहरण इसमें है कॉन्सेप्ट कंटेंट ब्रीफ का, उसी में उनके फोल्डर में। मैम एक क्वेश्चन आ रहा है मैम, जब हम लोग ब्लैक बोर्ड प्रेजेंटेशन देते हैं, मतलब ब्लैक बोर्ड पे चीजें हैं उसको हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटर प्रेजेंट कर रहा होता है, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हम लगा है कि कोई टेक्स्ट प्रेजेंटर के पीछे छिपना नहीं चाहिए। अगर छिप रहा है तो हम प्रेजेंटर को हटा करके पूरा बोर्ड को ही फ्लैश करते हैं ना। ये तो वैसे बोर्ड होना नहीं चाहिए, बोर्ड वाले तो बहुत नहीं जनरली करते क्या, हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे स्टूडियो में हमारे पास कागज प्रेजेंटर के पास ही रखा होता है और टॉप एंगल से वो क्या लिख रहे हैं वो कैप्चर होता है, ना कि बोर्ड पे पढ़ा रहे, फिर तो इट इज एज गुड एज क्लासरूम। मैम एनसीईआरटी के बहुत सारे वीडियोस बोर्ड पे पड़े हुए हैं। वो हमारे नहीं है, वो जिस समय कोविड के समय में बहुत सारे हमने और सोर्सेज से भी लिए थे वीडियो। अच्छा, तो वो वाले वीडियो हैं वो जो कहीं और सोर्सेज से हमें मिले। अभी कंटेंट क्लीनिंग करी गई है हमारी दीक्षा वेबसाइट की, दीक्षा पोर्टल का, उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट अब हटा रहे हैं हम लोग। इट मींस मैम जब ऐसी वीडियोस बन रही है तो जब आपको समझाना, जब आप प्रेजेंटर है तो ठीक है, अगर वो कुछ समझाने का कॉन्सेप्ट है तो वो हाथ और पेपर बस उतना ही दिखना चाहिए ताकि वो क्लियर व्यू, मतलब टॉप व्यू से उसको लिया जाए। और वो पेपर भी अगर हम पहले से ही बना के रख लें तो इस समय हैंडराइटिंग आप कैसी लिखी जा रही है ऑन स्पॉट, अगर वो सारे चीजें भी हम पहले से ही बना कर लाएं और उसको दिखाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। बड़े पेपर पे साफ साफ लिख के टैब में भी कर सकते हैं, टैब में बना करके रखेंगे और हाँ उसको भी दिखा सकते तो ड्राइंग वाले में दिक्कत आती है। हाँ दिक्कत आई तो उसमें नहीं मैम, लेकिन कैमरा आगे लेने में समटाइम्स उसमें डायग्राम्स जो होते हैं, डायग्राम्स के थ्रू जो बताते हैं उसमें तो उसी समय बनाना सही रहेगा। नहीं बना हुआ भी रख सकते हैं, उस समय भी बना के दिखा सकते हैं, फिर बना हुआ आप दिखा दें। हाँ, ताकि ये उसका कर एक सकते हैं कि अच्छा बना view के मिले। दिखा के फिर एक बना हुआ क्लियर व्यू जो है वो हम दिखा सकते हैं।
हाँ, ये प्रोग्राम ब्रीफ है। इसके एक ऑडियो प्रोग्राम के हालांकि जो है नक्शे में संसार, इसका वो है स्क्रिप्ट है, वो एक बार बता देते हैं इसको। स्क्रिप्ट नहीं, ऑडियो। एक ऑडियो भी आपको सुनाई देते हैं, और क्योंकि ये ब्रीफ से मानचित्र में दुनिया। मानचित्र में दुनिया। नक्शे हमें घुमाते हैं, नक्शे हमें घुमाते हैं। पहाड़, पठार, मैदान, समुद्र और खाड़ी तक ले जाते हैं। जग की सैर कराते हैं, जग की सैर कराते हैं। नक्शे हमें घुमाते हैं, नक्शे हमें घुमाते हैं। किस पर्वत से नदी निकलकर किस सागर से मिलती है, रेगिस्तानी रेत कहां पर मृग तृष्णा से चलती है। कहां पड़ती है शीत बड़ी और कहां घनेरे जंगल हैं। कहां समुद्र है शांत संत सा, कहां पे लहरें चंचल हैं। कहां चलती हैं गर्म हवाएं, कहां पे पल पल रिमझिम है। कहां वो सपनीले टापू हैं, कहां पे गहरी झीलें हैं। नक्शे हमें घुमाते हैं, नक्शे हमें घुमाते हैं। पुरु चला था किस धरती पर, समुद्रगुप्त ने क्या जीता था। कहां क्रांतियां हुई विश्व में, कहां वीरों का खून गिरा था, कहां वीरों का खून गिरा था। नक्शे ही दिखलाते हैं, घर बैठे ही कहां कहां की बातें हमें बताते हैं। क्या क्या नहीं सिखाते हैं, क्या क्या नहीं सिखाते हैं। नक्शे हमें घुमाते हैं, नक्शे हमें घुमाते हैं। मैथ एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत ही अनइंटरेस्टिंग लगता है,
तो मैप में किन किन बातों से हम उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, किन चीजों से रिलेट करके मैप रीडिंग, मैप की स्टडी हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि इस कार्यक्रम में उन सभी बातों का जिक्र है। सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, क्योंकि जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं एक पर्टिकुलर टाइम में और एक स्थान पर, टाइम एंड स्पेस को हम रिलेट कर सकते हैं नक्शे के माध्यम से, क्योंकि हर जगह पे जाना किसी के लिए भी संभव नहीं है जब हम उन जगहों के बारे में पढ़ते हैं। तो हर चीज, चाहे वो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, वो सब एक टाइम एंड स्पेस में घटित हो रहा है। जो वॉइस बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मैं आँख बंद करके सुन रही थी। तो ऑडियो में यही होता है, बिकॉज इट इज रिटन फॉर द ईयर्स। तो उससे हम म्यूजिक से, साउंड इफेक्ट से और वॉइस से ही एम्बियंस डेवलप करते हैं। इसके जो कंटेंट ब्रीफ जब हम बनाते हैं, प्रोग्राम ब्रीफ, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि क्या दायरा होगा उसका। नक्शे में संसार ये टाइटल है, सब टाइटल कुछ नहीं है उसमें, सीरीज भी नहीं है ये। अब जो थीम्स हैं, मैपिंग माय नेबरहुड, हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं इसको, जिन पर बेस्ड है। कॉन्टेक्स्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, फिर मैप्स, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स, वेयर, व्हेन एंड हाउ, वेयर, व्हेन एंड हाउ। अब सब थीम इसमें कुछ नहीं है। सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। भाषा इसमें हिंदी है, जिसमें ये मीडियम है। 4-5 मिनट अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन विद म्यूजिक, जो भी आया है इसमें, साउंड इफेक्ट्स। प्राइमरी, अपर प्राइमरी के लिए यूजफुल है। एज ग्रुप है, टारगेट ऑडियंस। प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, इसमें सॉन्ग एंड रेसिटेशन है। इसमें और भी फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, जिसमें हमने चुना है सॉन्ग एंड रेसिटेशन। ये सब प्रेजेंटेशन फॉर्मेट होते हैं अगर आप देखें। डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, इंटरव्यू, ड्रामा, रोल प्ले, डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यू ड्रामा, फीचर, लेक्चर, वॉक्स पॉपुली, स्टोरी टेलिंग, कल्चरल एक्टिविटीज, डांस, सिंगिंग, रेसिटेशन, मॉडल रीडिंग, न्यू मीडिया में मल्टीमीडिया, इंटरैक्टिव कंटेंट, सिंगिंग। अब जो ऑब्जेक्टिव है इसके, आफ्टर लिसनिंग टू द सॉन्ग रेसिटेशन, द टारगेट ऑडियंस विल बी एबल टू एक्सप्लेन हाउ मैप्स रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड वी लिव इन। ठीक है। ट्रिगर, रिकॉग्नाइज द यूजेस ऑफ मैप इन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, दोनों में ही क्या यूजेस है मैप के। ट्रिगर स्पेशल थिंकिंग टू अंडरस्टैंड यूजेस ऑफ मैप, हम स्पेस की भी थिंकिंग करते हैं ना। मैप में तो वो तो लाइन ड्राइंग होती है, बट वी नीड टू थिंक अबाउट द स्पेस। स्पेशल थिंकिंग को भी हमें वो इम्प्रूव करते हैं। comprehend and the phenomena related to time and space, टाइम और स्पेस का क्या फिनोमिना है उसको वो समझ पाते हैं उससे। अब कंटेंट कवरेज इसमें क्या है? The script covers the idea of uses of map in geography and history to understand the world in time and space. अब प्रोडक्शन टिप्स इसमें भी देते हैं हम। रेसिटेशन इन मेल वॉइस विद अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन एंड साउंड इफेक्ट्स, आपने बोला कि आपको अच्छा लगा, तो इसका मतलब ये मेल वॉइस के लिए एक अप्रोप्रिएट कंटेंट था, तो ये पहले से ही सजेशन दिया गया था इसमें। फिर सॉन्ग विद अप्रोप्रिएट म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स फॉर क्रिएटिंग एन एम्बियंस ऑफ टाइम, स्पेस एंड इवेंट्स, जैसे क्रांतियों में गोली की आवाज आ रही है और जहां जिस चीजों का जिक्र किया है उसी तरीके के उसमें साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं। और अगर इसके ऊपर बेस्ड हम वीडियो भी बना सकते हैं तो हम उसके बैक में हम ये साउंड प्ले करेंगे ना मैम, अगर हाँ, इसके जैसे पहिया था। हाँ, तो पहिया तो एक म्यूजिक है, वो भी सॉन्ग था, उसको एनिमेशन के साथ ऐड कर दिया तो वो एक वीडियो प्रोग्राम भी बन गया। इसी तरह से इसके ऊपर भी हम वीडियो प्रोग्राम में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और देखो क्या है, ऑडियो में सिर्फ कैसे यूज करेंगे?
ऑडियो तो है ही, तो इसको यूज करने के लिए जैसे अगर हम प्ले करेंगे ऑडियो क्लासरूम में, जब हम नक्शों के बारे में बता रहे हैं तो क्लासरूम में वी कैन प्ले एंड देन वी कैन बिल्ड लर्निंग अराउंड इट। नहीं ये हाँ, और एक कुछ कंटेंट ऐसा भी होता है जिसको हम इंटरैक्टिव ड्रैग ड्रॉप और इस तरीके के, तो उसके लिए भी हमें स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड बनाना होता है। वो किसी सॉफ्टवेयर से बनेंगे, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है H5P, है ना? तो लूमी में ले हाँ, लूमी में भी बन जाता है, H5P में भी बन जाता है। एजुकेशनल हाँ, तो उसके लिए भी जब तक हम स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं वो कोई और लोग हैं। अगर आपने सीख लिया तो बहुत अच्छा, फिर तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी हमें ग्राफिक्स में इमेज या तो बनानी पड़ेगी या फ्री एंड ओपन सोर्स सोर्सेस से इमेजेस ले सकते हैं। वो कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए, कॉपीराइटेड ना होने नहीं होनी चाहिए। एआई टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे आजकल है कि हम लोग अगर हाँ, एआई टूल्स यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। एआई टूल बहुत सारे आते हैं जो आइडिया जो वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, जो स्क्रिप्ट जिसे दिखाया स्क्रिप्ट को हम लोग डाल के फिर उसको वीडियो एनिमेशन वगैरह। मैम फिर हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, किसको? एआई को भी देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भी मैम वो जब बताते हैं अगर कहीं से वो लेते हैं रेफरेंस तो वो एडिंग कर देते अगर हैं। आपने इमेज कहीं या किसी व्यक्ति ने बनाया है और उन्होंने अपना कॉपीराइट उस पे लगाया, वो नहीं यूज कर सकते। एआई से जो आपको इमेजेस मिल रही हैं उसमें कोई कॉपीराइट नहीं होता है, तो उसमें किसी को क्रेडिट आप किसको देंगे? ठीक है, बट जो जनरेट होती है ना इमेजेस उनमें उस जिस भी एआई से बनाया गया है उसका लोगो आता है, उसका लोगो रहता है, वो चाहे बॉटम पे रहेगा, जैसे नोटबुक एलएलएम में आएगा, जेमिनी प्रो में आएगा या चैट जीपीटी में आएगा, उसको नीचे उनका आइकन आता है। हाँ, तो ठीक है, लेकिन किसी और का लेंगे तो वो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। मुझे उस दिन कल के सेशन में तो बताया भी गया था ना, हाँ, मॉडिफाई करके दे रहा आपको पुरानी इमेज किसी की, तो उसको भी आपको उसमें एक साइट है क्रिएटिव कॉमन्स, इसके बारे में बताया गया था। हाँ, क्रिएटिव कॉमन्स से आपको देखना है कि वहाँ कौन सा किस लाइसेंसिंग से रिलीज किया गया कंटेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए उस लाइसेंसिंग के हिसाब से हमें एक्नॉलेज करना है अगर हम वहां से ले रहे हैं कंटेंट, ये ध्यान रखना है। और अगर आपके पास पूरा सेटअप है, जैसे सीआईटी में है, यहाँ एक ग्राफिक डिवीजन भी है जहाँ बहुत सारे ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, तो वो ग्राफिक आर्टिस्ट आपके लिए, आप उन्हें रेफरेंस इमेजेस दे दें, ग्राफिक आर्टिस्ट आपके लिए इमेजेस बना सकते हैं। तो इसमें एक टॉपिक है जो प्राइमरी क्लासेस के लिए है, क्लासिफिकेशन। ये इसका वीडियो है, हालांकि इंटरैक्टिव कंटेंट है, तो वीडियो में कन्वर्ट किया हुआ है। Can we put them in 4 baskets on the basis of their color? Let us try and put them into 4 groups. Drag fruits to the basket to form the 4 groups. ये H5P से बना है। लास्ट ईयर ये कंटेंट में H5P को मना किया था, क्योंकि अब उसमें बहुत सारे फीचर्स पेड हो गए हैं। लूमी बनता है, लूमी वाला एडिशन बना लेते हैं ना, उन्होंने कहा कि आप इसको एनसीईआरटी मना करिए कि आप लूमी यूज नहीं कर सकते। नहीं शिक्षा के लिए मना किया उन्होंने। किसने मना किया? एनसीईआरटी ने। इसकी वो मना कर दिया। अब इसकी स्क्रिप्ट देखिए, ये है, टॉपिक है क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन है फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, चाइल्ड हैज टू क्लासिफाई द फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर और शेप, तो कोई भी रख सकते हैं आप, जो आपने देखा उसमें कलर है। फिर मीडियम है, सब्जेक्ट क्या है इसका, और ऑडियंस कौन है, एजुकेशनल यूज क्या है, टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर,
अब ये इसमें इमेजेस हैं। यूजर के लिए इंस्ट्रक्शन हमें इसमें आपने देखा होगा, हालांकि वो एक इंडियन एक्सेंट नहीं है, बाद में इंडियन एक्सेंट में भी इसको बनाया गया। तो ये इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि रीड करना हम पहली क्लास के बच्चे के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ना करके अगर ऑडियो इंस्ट्रक्शन है तो ज्यादा अच्छा है। फिर डेवलपर के लिए हम इंस्ट्रक्शंस देंगे। If the user drags fruits of one color in one basket, then fruit of another color cannot be placed on the same basket. वो bounce back हो जाएंगे। एक आप इंस्ट्रक्शन ये भी दे सकते हैं कि बाउंस बैक ना करे, वो भी वहीं रहे गलत कलर वाला फ्रूट भी, लेकिन एंड में जब आप फीडबैक लेंगे तो उसमें आ जाएगा कितने आपने गलत किए कितने सही किए, एंड यू कैन ऑलवेज रीट्राई। Give positive reinforcement, good with clapping for proper grouping and encouragement for improper placement. ये कुछ और कंटेंट बने हैं उसमें, वेल डन या ट्राई अगेन, इस तरह के reinforcement भी मिल सकते हैं। तो ये अब हमने देखा कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन पे आ जाओ। एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्ड, प्रोग्राम ब्रीफ, ये सब हम किस तरीके से बनाते हैं और उनके क्या क्या उद्देश्य हैं। अब ये लास्ट स्लाइड है जिसपे हम आ जाते हैं कि पूरा प्रोसेस जिससे हम कैप्चर कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड कि हम ये एक डिजिटल स्टोरी टेलिंग इसका टाइटल है ये, ठीक है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं। स्टेप 1 है कम अप विद एन आइडिया एंड टू राइट अ प्रपोजल। ये पहला स्टेप है कि हमारे पास आइडिया होना चाहिए कि किस आइडिया पर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और फिर उसका हमें प्रपोजल बनाना है। स्टेप 2 रिसर्च, एक्सप्लोर एंड लर्न, जिसमें हम रिसर्च करेंगे और ज्यादा लर्न करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। स्टेप 3 में हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, वी हैव टू राइट द स्क्रिप्ट। स्टेप 4 है स्टोरी बोर्ड और हम उसकी प्लानिंग करेंगे, स्क्रिप्ट के बाद स्टोरी बोर्डिंग। स्टेप 5 गैदर, क्रिएट इमेजेस, गैदर या क्रिएट ऑडियो, गैदर क्रिएट वीडियो। या तो हम गैदर करें फ्री एंड ओपन सोर्स सोर्सेस से, या हम क्रिएट करें। स्टेप 6 है पुट इट ऑल टुगेदर, उन सबको हम एक साथ कंबाइन करेंगे। स्टेप 7 हम शेयर करेंगे। स्टेप 8 फीडबैक एंड रिफ्लेक्शंस हम उस पर लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस, क्योंकि कोई भी जो कंटेंट है इट्स अ डिजिटल स्टोरी टेलिंग, हम एक स्टोरी उसमें वीव कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री है, वीडियो है, ऑडियो है, और वो इसी प्रोसेस से हम उसको निर्माण करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द पेशेंट शेयरिंग। थैंक यू सो मच। जो ना किसी भी वीडियो का कंप्लीट मिल जाएगी, स्क्रिप्ट, उसका स्टोरी बोर्ड, उसका वो पहिए का है, उसका कंप्लीट मिल जाएगा पूरा। डॉक्टर एंजल से ले लीजिएगा, उनके पास है। तो इसमें डाल दिया, एलएमएस में डाल दिया, आप उनसे बात कर लीजिएगा, मैंने दिया हुआ है यहाँ पे सब, ठीक है, वो सारा अलाइंड है। मेनली जो है स्क्रिप्ट और सीधे वीडियो दो चीजें बनती हैं। ठीक है, आप ले स्टोरी बोर्ड और वो चीजें बनाते हैं। Any queries? If you have, you can just put the queries to ma'am. मैम ने जो बोला वो हमें भेज दीजिएगा। वो पहिया वाला वीडियो, उसका स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड, वो इन लोग के साथ शेयर कर लेंगे। That will be uploaded in the LMS. हुई हमारी, तो वो सारी मटेरियल्स हमें मिल जाते हैं। सर वो पूरा आपका LMS में कुछ भी आपका शेयर करना है, सब LMS में अपलोड होगा। लास्ट दिन आप सब डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है? ठीक है, मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन? Although they ask many questions in between. Any final questions? Yes, मैम स्टूडियो की काम हम जो ओबीएस स्टूडियो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग से करते हैं, जैसे जो स्टूडियो हमारा स्टूडियो नहीं है ना, कम रिसोर्सेज में हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं। क्या लिमिटेशंस हैं जो ओबीएस के सबका क्वेश्चन क्या है? वो कह रहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं ना, उनका स्टूडियो नहीं है, जैसे टाइप कंसीन है अभी स्टार्टिंग है, लेकिन मान लीजिए तो उसमें जो भी आपके हाई डेफिनेशन का रिकॉर्ड होता है, अगर आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें जो साउंड सिस्टम है ज्यादा बेटर होता है,
तो आपकी जो क्वालिटी होगी, जैसे आपने ऑडियो सुना, उस क्वालिटी का तो नहीं आता होगा ना आपका, तो वो उसमें फर्क है। उसकी सर, अब स्क्रीन लिमिटेशन रिकॉर्डिंग कौन सा हाई tool use करें? डेफिनेशन नहीं आती। मैम कुछ अगर अच्छी स्क्रिप्ट है अगर किसी टीचर की, तो कैन वी सेंड टू यू फॉर फर्दर? हाँ, भेज सकते हैं, पर आई एम नॉट हेडिंग दैट डिपार्टमेंट, देयर इज अनदर हेड हु टेक्स कई केयर ऑफ बार ऑडियो कुछ वीडियो। टीचर्स दे कम विद सम आइडियाज ना, तो अगर ऐसे तो इतना परफेक्ट तो नहीं बन पाए स्क्रिप्ट वर्क, कैन वी हैव द आउटलाइंस और somebody can help them? ठीक है, उसको फिर प्रोफेसर राजेंद्र पाल हैं, हु हेड्स द डिपार्टमेंट मीडिया प्रोडक्शन डिवीजन। तो मैम हमारा डाइट एज ए डाइट, तो फिर हमारा तो कोई रोल है नहीं इस चीज में। किसमें? ये जो चीज कर रहे क्यों हैं सर, हमें तो अपना क्योंकि बनाना आपने है ना। अपने एंड नहीं, पे बनाना है ना, पर वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, तो हम कैसे बनाएंगे? सब जगह डेवलप हो रहे हैं ऑडियो का। नहीं, मैं आज स्टूडियो सब जगह सेट I am talking about my diet as it is Sir, in if my the diet. diet doesn't have studio, always it's not about this. All the session is not making you to have a studio. The thing is, even there is a SCRT studio is there. The script has to come from the diet. So, I have to write a script for you to have an understanding the holistic picture. वही मैं कह रहा हूँ, आपका पूरा आउटपुट पूरा पता होता है, प्रोसेस पता होता है, then only you can enable even resource. If you are conducting a workshop at directly, you are saying the teacher is good at writing a script. आप एक प्रोजेक्ट लेके हमारा सिस्टम में, maybe you are a maths background person, you can have a workshop with some maths teachers and write scripts and submit it to your SCRT for the production. अभी ये पूरा हमारा स्टूडियो भी और भी लोग यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर डाइट में हर स्कूल में स्टूडियो हो। अगर हमें स्क्रिप्ट लिखना होता है, script is the main thing that we have to prepare and then we have to send it to SCRT and then if they selected it will दीक्षा send it. पोर्टल के लिए तो मैम हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डायट्स में भी बनाने के लिए दे दिया गया, तो हम लोग तो खुद भी बनाते हैं। सो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीका हो कंटेंट तो बनते ही है ना, कंटेंट बन रहे हैं। जैसे इंफ्रा में सब जगह यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसा आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से यू कैन प्लान। मैम दिल्ली एससीईआरटी में स्टूडियो है, मगर ड्यू टू द स्टाफ क्रंच, एडिटर नहीं है प्रोफेशनल, खुद ही करना पड़ता है। तो अगर हम हेल्प लेना चाहें तो हमें क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं? मैम अभी ऐसा प्रोमिसेस हम नहीं देते हैं, बिकॉज ऐसा है ना, लाइक यू जस्ट कैन थिंक ऑफ देयर इज लाइक वर्कलोड ऑन एनसीईआरटी आल्सो। सो ऑलरेडी आपका पीएमए विद्या में एडिटिंग कैसा करना है, ऑलरेडी एससीईआरटी डाइट फैकल्टी के लिए भी ट्रेनिंग दे रहे टू हैंडल एट योर ओन लेवल एट द स्टेट। पूरा स्टेट का काम अगेन हम सपोर्ट करने के लिए हम इनपुट्स दे सकते हैं। आपका काम इधर लेके आके एडिटिंग हम नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आपको हायर करना पड़ेगा, उसके लिए आप आउटसोर्स करना चाहिए, आपको हायर करने चाहिए एडिटर्स। मैम दूसरी एक बात और है मैम, 5 दिन में हम इतने प्रोफिशिएंट तो नहीं हो सकते कि अगर हम अब हायर में भी बजट की कंस्ट्रेंट होती है। अगर मान लो मेरे जैसे सीखना मैम एक मिनट, ये 5 दिन ट्रेनिंग पहले आपका टीजर है, पूरा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आपका। कल से आप एक्चुअली एक्सपर्ट बनाने के लिए डे 1 में ही हम बता दिया मैम। थोड़ा मगर मैम हम अपने स्टूडियो फंक्शनल बनाना चाहते हैं, पर रिसोर्सेज हैं, ये हमारा हाथ में नहीं है। मैम फिर सो अब आप बात वापस जाना है। देखिए एजुकेशन आपको पता होगा हमारे संविधान की कॉन्करेंट लिस्ट में ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके सारे समस्याओं का समाधान हम कर देंगे। स्टेट के अपने बजट होते हैं, उस बजट के अंदर आपको काम करना है और अपने समाधान हमें खुद ढूंढने हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह डिफरेंशिएटेड है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना इंफ्रा इम्प्रूव करना है और जो इंफ्रा है उसको कैसे यूटिलाइज करें उसके तरीके निकालने हैं। आपको अपना बजट उस तरीके से फिगर आउट भी करना है और उसका खर्चा भी करना है, ताकि जो आपकी चीजें हैं वो आप कर सकें। तो एससीईआरटी डायरेक्टर आपकी मदद कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सर ऐसा क्वेश्चन हाँ, पीएमई विद्या पर वो क्या एडिटिंग वाले वीडियो है जिससे हम सीख सकें कैसे एडिटिंग करना? सर एक्चुअली क्या है ना, ये ट्रेनिंग अलग अलग से फेस टू फेस में उनको पीपल का कर रहे। ये अलावा एनसीईआरटी इज डूइंग एवरी वीक 5 आवर्स ट्रेनिंग ऑनलाइन। हम आप सबको स्टेट का भेज रहे। 5 दिन में एक दिन ऑलरेडी हम एडिटिंग का भी सेशन ऑलरेडी ले लिया। सो इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब ऑफ द ट्रेनिंग सेशन। पूरा ये शॉर्ट्स का भी एक सेशन ले लिया। आपके सो यू नीड टू फाइंड आउट। आपके ऐसे लोग हैं जो एडिटिंग सीख लेंगे,
क्योंकि एडिटिंग भी एक स्किल है, अलग प्रोफेशनल स्किल है ये। तो इसमें आपको एक्सपोजर तो मिल सकता है कि आप जो एडिटर प्रोफेशनल कर रहे हैं आपको पता हो कि एडिटिंग आपकी ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही। आपका पर्पस ये नहीं है कि आप एडिटर बने, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जो बनता है वो टीम वर्क ही है। यू कैन गेट एन एक्सपोजर बट यू कैन नॉट बिकम अ प्रोफेशनल एडिटर, और वो आपका पर्पस होना भी नहीं चाहिए। So I take the time to thank Professor Endu Kumar ji on behalf of all the participants for starting the session and giving the exposure for production. And today whole day we are going to dive into this area in different aspect. And again, even though one full day is dedicated for this, this is just a teaser. Because we do this one day program itself as 10 days program. Whatever you are learning in these 4 sessions, it is supposed to be a 10 days complete training we also have for people. And even if you just have to write script writing itself is a 5 days training which NCIT has conducted in some states on their request. One aspect is like all this SCRTs, whenever they are in need, they send the request for the training. Basically, randomly, we don't go and train people. Like Jharkhand has sent once the letter, our all diet faculty are going to be involved in e-content development, which has to be uploaded in Diksha. So we want CIT team to train us. So we all went as a team to Jharkhand. We trained 55 Jharkhand diet faculty in their own place. So last week also, ma'am has gone to Port Blair because Andaman say diet se pucha tha. We want all the diet faculty to be trained. So that requirement from the state SCRT on any specific area. So Assam has given like we want to start a audio studio. There is no studio. Anybody goes to Assam, you see the studio. It's just a small room, store room, which doesn't even occupy this much of space, this much only. It was just behind the washroom. They have just converted into an audio studio. They asked for a specific training. So they said like we don't have editors. We are 3 people are doing. So anytime. So there is a requirement if there is specific. The SCRT has to communicate to अगर joint आप director. भी अपनी डिमांड रेज करेंगे जॉइंट डायरेक्टर सीआईटी को लिखिए, अगर आपकी कोई नीड बेस्ड ट्रेनिंग है जो हमारे काम के दायरे में आती है तो वी विल डेफिनेटली कंडक्ट दैट ट्रेनिंग। Okay. उसके लिए यू हैव टू राइट जॉइंट डायरेक्टर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ma'am. Let's break for chai. We are just 10 minutes